Hello students, today you will learn addition of vectors, how to add or subtract vectors and how to multiply a vector by a scalar. इस तरह की चीज़ें आज हमें सीखनी है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जनरली ए वेक्टर। वेक्टर ए बी मीन्स इफ यू वांट टू ऑब्जर्व वेक्टर ए बी मीन्स displacement of point A to point B. This is vector AB. ठीक है बच्चों, vector B means displacement of point A from point A to point B. So this is denoted by vector AB. If you want to see how to add vectors, let a boy move from point A to point B and point B to point C. Then the final displacement of point A, final displacement of the student is denoted by AC. So this is the addition. AB plus BC is equal to AC. AC is equal to AB vector प्लस BC वेक्टर। इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, पॉइंट A से B तक गया स्टूडेंट और B से C तक गया, तो AB is denoted by vector AB, B to C is denoted by vector BC. Then the final displacement of the boy is denoted by vector AC. So AC is equal to AB plus BC. This is called triangle law of vector addition. ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखी हुई यहाँ पर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the sum is represented by the third side taken in reverse order. This is called the triangle law of vector addition. जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ABC is a triangle. ABC is the triangle. There are two vectors AB and BC are denoted here in the same order. Then their sum is denoted by vector AC taken in reverse order. So AC is equal to, what is AC? Vector AC is equal to AB plus BC. AC is equal to AB plus BC. This is called triangle law of vector addition. In the same way, we have parallelogram law of vector addition. If two vectors A and B are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of the parallelogram, which is co-initial with the given vectors. यहाँ पर देखिए, OPQRPO is a parallelogram. OP is vector A, OQ is denoted by vector B. So OP मतलब A and B are two vectors which are represented by adjacent side OP and OQ. Then their sum is denoted by vector OR. OR is diagonal vector. ठीक है, तो डायगोनल वेक्टर देखो, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर OR आर को इनिशियल। ठीक है, दोनों को इनिशियल। तो वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर दिस, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर OR। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो OP प्लस PR इज इक्वल टू OR, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दिखाया गया, तो इनका सम देखो, ये वेक्टर B है, वेक्टर B इज इक्वल टू दिस, तो A प्लस B ऐड होके क्या आ जाएगा, वेक्टर OR। तो वेक्टर OR इज A प्लस B। यही कहा इसमें
If two vectors A and B are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of the parallelogram, which is co-initial with the kin vectors. ठीक है, तो दिस इज ट्रायंगल लॉ और दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कि वेक्टर एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. पहला है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मीन्स फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. चाहे आप वेक्टर ए में बी जोड़ें, ऐड करें, चाहे वेक्टर बी में ए ऐड करें, thus resultant will be same. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ऐसे एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में क्या करते हैं, थ्री वेक्टर्स हमारे पास ए बी एंड सी, तो हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी को एसोसिएट करके सी में ऐड कर दो, चाहे ए को बी और सी में एसोसिएट करके ऐड कर दो, तो एक ही बात है. ए और बी का एसोसिएशन किया यहाँ पर, और यहाँ पर बी प्लस सी का एसोसिएशन किया और ऐड कर दिया तीनों को, तो रिजल्टेंट सेम आता है. तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. फिर है एडिटिव आइडेंटिटी. फॉर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसमें हमने जीरो वेक्टर जोड़ा, तो वेक्टर ए में जीरो वेक्टर जोड़ने के बाद वेक्टर ए ही आएगा. देन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है बच्चों. अब ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर. किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना. ये इस तरह से है, लेट ए इज ए गिवन वेक्टर एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्डा इज डिनोटेड बाय लैम्डा ए. ठीक है, तो लैम्डा ए इज आल्सो ए वेक्टर कोलिनियर टू द वेक्टर ए. जैसे यहां पर देखो, मान लो कोई वेक्टर ए है, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 इज ए स्केलर, तो देयर रिजल्टेंट विल बी 5a. इसका मतलब वेक्टर ए में 5 से इंटू हो गया, तो 5a इज आल्सो ए वेक्टर विच इज 5a इज आल्सो ए वेक्टर विच इज कोलिनियर विद वेक्टर ए. बस इसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम हो गया. ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर में a में 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 10a. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 10 टाइम हो जाएगा. तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर. ठीक, अब है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर. किसी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म. इससे पहले हम देख लेते हैं यहां पर यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं. व्हाट इज यूनिट वेक्टर. Here OX axis, Y axis and Z axis. Let A is any point with coordinate 1 0 0. B is any point on Y axis 0 1 0. C is any point on Z axis 0 0 1. Then vector OA. वेक्टर OA की लेंथ के मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1. वेक्टर OB का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, दिस इज आल्सो 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यह भी 1 है. वेक्टर OC का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1. तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. एंड दीज यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय OA is on x-axis, so you will say it I cap. OB is on y-axis, you will say it J cap. OC, vector OC is on z-axis, you will say it K. So the unit vectors are denoted by I cap, J cap and K cap. I J K से डिनोट होते हैं, बार बार हम कैप नहीं बोलेंगे.
ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय आई, जे एंड के. आई इज ऑन एक्स एक्सिस, आई इज यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, के इज यूनिट वेक्टर ऑन जेड एक्सिस. ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 सबका. ठीक, तो अब हम किसी वेक्टर को आई जे की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं कि आई जे के की फॉर्म में क्या होंगे वो. दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म. तो दिस इज हियर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर. तो यहाँ पर देखिए वही हमारा 3D स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे और के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस विच इज whose coordinate are x y z. ठीक है, इट मीन्स ओ क्यू डिस्टेंस इज x. ठीक, ओ और क्यू पी, वाई एक्स पे कितना चले हम, y, और जेड एक्स पे कितना चले, z. तो P पर पहुंचने के लिए मुझे क्या होगा, P पर पहुंचने के लिए पहले मैं O Q तक जाऊंगा, फिर Q से P पे जाऊंगा, फिर Q से P1 पे जाऊंगा और P1 से जाऊंगा P पे. इस तरह से हम P पर पहुंचेंगे. इट मीन्स ओ क्यू इज x, QP1 इज y. ठीक, और P1 ये P1P इज z. ठीक है, तो O since I is unit vector in the direction of OX, तो vector OQ, what is vector OQ, that is XI. ठीक, what is vector QP1, QP1 is IY, IY. ठीक, what is vector PP1, PP1 will be ZK, क्योंकि डिस्टेंस P1P डिस्टेंस है Z और Z डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, K. तो P1P इज ZK. तो पहले देखो यहाँ पर ट्रायंगल में O से Q पर गए, Q से गए P पर, P1 पर. ठीक है, तो इसमें ये ऐड हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, OP1. तो OP1 इज इक्वल टू क्या हुआ, वेक्टर OP1 इज इक्वल टू XI प्लस वाई से. ये देखो यहाँ पर. ठीक है, तो हम इन दोनों की जगह OP1 पे आ गए. अब OP1 में क्या ऐड हुआ, OP1 में ऐड हुआ P1P. इसमें जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, OP. तो OP इज इक्वल टू व्हाट इज OP, वेक्टर OP, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2. तो दिस इज OP. OP1 वेक्टर क्या था हमारा, XI प्लस वाई से. P1 P2 क्या है, ZK. तो कुल मिला के क्या हुआ, वेक्टर OP इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK. This is component form of vector OP. This is called component form of vector OP. When a vector is written in the form xi plus yj plus zk type, then you will say it is in a component form, where x, y, z are called scalar component and xi, yj, zk are called vector component. ठीक है बच्चों, और OP का अगर हम मॉडुलस निकालें, वेक्टर OP का मॉडुलस, व्हाट इज दिस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो दिस इज कंपोनेंट फॉर्म. अब हम कंपोनेंट फॉर्म में और चीज आगे ऐड करना चाह रहे हैं. यहां पर देखिए, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k. एक वेक्टर और है b, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k. ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनको हमें जोड़ ऐड करना है. तो सम ऑफ दिस वेक्टर, तो सम ऑफ वेक्टर्स a प्लस बी हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b. इसमें हम क्या करते हैं,
आई वालों में आई वाले ऐड कर देंगे, जे वालों में जे वाले ऐड कर देंगे और के वालों में के वाले। आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट वाले में जे कंपोनेंट, के वालों में के। तो आई वालों में आई जोड़ेंगे तो A1 प्लस B1 आई, A2 प्लस B2 जे, A3 प्लस B3 के। इस तरह से ऐड हो जाता है फट से। ठीक है बच्चों, एडिशन बहुत आसान है। आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट ऐड कर दो, जे में जे और के में के कर देंगे। ऐसे ही डिफरेंस में, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स a माइनस बी करना है मुझे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो आई वालों में से आई वाले माइनस कर देंगे, जे वालों में से जे वाले माइनस कर देंगे और के वालों में से के वाले माइनस कर देंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्शन हो जाता है आराम से। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक और कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे। इफ ए एंड बी आर two collinear vectors, then there exists a scalar lambda such that b is equal to lambda a। ठीक है, अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि a और b क्या है, collinear vectors हैं, then there exists a scalar quantity lambda such that vector b is equal to lambda a। ठीक है, vector b is equal to lambda a, तो b और lambda a दोनों ही वेक्टर हैं which are collinear। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर दो। वेक्टर b क्या है, दिस वन, तो b1 प्लस b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के इज इक्वल टू लैम्डा ए की जगह a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। ठीक है बच्चों, तो b1 आई प्लस b2 जे प्लस ये तो है इक्वल टू लैम्डा को अंदर पहुंचा दिया हमने, लैम्डा a1 आई लैम्डा a2 जे प्लस लैम्डा a3 के। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में एक वेक्टर है आई जे के की फॉर्म में और राइट साइड में भी एक वेक्टर है विच इज आल्सो इन द आई जे के फॉर्म। And what we are observing that this vector is equal to this vector। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं बच्चों, जब उनके आई कंपोनेंट के इक्वल हो, जे कंपोनेंट के इक्वल हो और के वाले कंपोनेंट के इक्वल हो, तब दो वेक्टर इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब आई वाले कंपोनेंट आई वालों के इक्वल, जे वाले कंपोनेंट जे वालों के इक्वल और के वाले कंपोनेंट के वालों के। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो कंपेयर कर दिया हमने आई वालों को आई वालों के साथ, जे वालों को जे वालों के साथ, के वालों को के वाले के साथ। तो देखो आई का कंपोनेंट यहाँ कोफिशिएंट क्या है, b1, यहाँ पर आई का लैम्डा a1, तो b1 इज इक्वल टू लैम्डा a1 हो गया। ऐसे ही b2 इज इक्वल टू लैम्डा a2 और b3 इक्वल टू लैम्डा a3। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा क्या आया, b1 अपॉन a1, यहाँ से लैम्डा क्या आया, b2 अपॉन a2, यहाँ से लैम्डा क्या आया, p3 अपॉन a3। ठीक है, सबके सब रेशो लैम्डा के इक्वल है, तो इट मीन्स ऑल द रेशोज आर इक्वल। b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b3 अपॉन a3। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स a and b आर कोलिनियर देन b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b3 अपॉन a3। या इनको उल्टा करके भी कह सकते हैं, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इसको याद रखेंगे हम लोग कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, उनके लिए कंडीशन है आई वालों का रेशो अपॉन इक्वल टू बी जे वालों का रेशो इज इक्वल टू के वालों का रेशो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये सब चीज़ें हमारे नोट करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, हमें जेई में भी काम आती हैं बहुत, तो इसको इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एक देखो चौथी कंडीशन और है यहाँ पर, इफ ए इज एनी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ए इज वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, देन a1 a2 a3 आर also called direction ratios of vector A। ठीक है बच्चों, वेक्टर A
अगर ये है हमारे पास A1i प्लस A2j प्लस A3k, देन A1 A2 A3 आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर A। यहाँ देखो, अगर वेक्टर A को मैं कहूँ कि 2i प्लस 3j प्लस 5k, फाइंड DRs, डायरेक्शन रेशियोज बताओ क्या है इसके। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 3 एंड 5। ठीक है, 2, 3 एंड 5 आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर A। ऐसे यहाँ फोर्थ पॉइंट है, इफ L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, then Li plus Mj plus Nk is the unit vector in the direction of that vector। क्या है, LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। then Li plus Mj plus Nk is a unit vector। बताओ ये यूनिट वेक्टर क्यों है, why Li plus Mj plus Nk ये यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि इसका मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आएगा। और हमें क्या पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी लेंथ क्या आ गई, 1। सो Li प्लस Mj प्लस Nk इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये हमें काम आएगा, 3D जब पढ़ेंगे तब काम आएगा ये। तो इफ LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, देन Li प्लस Mj प्लस Nk इज द यूनिट वेक्टर। ठीक, चलो अब है इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, टू वेक्टर्स A इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3 की, एक वेक्टर B है B1i प्लस B2j प्लस B3 की। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके i कंपोनेंट के बराबर हो, j कंपोनेंट के बराबर हो, k कंपोनेंट के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 किसके बराबर होगा, B1 के, A2 किसके बराबर होगा, B2 के, और A3 किसके बराबर होगा, B3 के। ठीक है, तो इस तरह से दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। यहां देखो इसे, मान लो हमारे पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट है Q। ठीक, एक फिक्स पॉइंट है मेरे पास O, तो P को Q से ज्वाइन करना है मुझे, दो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करना है। PQ वेक्टर, आई वांट टू नो व्हाट इज वेक्टर PQ। ठीक है, लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ P is this vector, position vector of Q is this vector, then what is PQ। देखो यहां से OQ is equal to OP प्लस PQ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, तो व्हाट इज PQ, वेक्टर PQ इज इक्वल टू OP को इधर ले जाओ, OQ माइनस OP। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू नो व्हाट इज वेक्टर PQ, देन यू विल सब्ट्रैक्ट OQ में से OP माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट से जाने वाला वेक्टर, हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, PQ, तो हम Q के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। और इफ यू वांट टू नो QP, तो बाद वाला देखो, यहाँ PQ था तो बाद वाला कौन है, Q वाले में से P वाला माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, QP, बाद में कौन है, P, तो क्या करोगे, OP में से माइनस कर देंगे OQ। ठीक है, अगर P निकालना है तो Q में से Q के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। अगर QP निकालना है, QP QP की डायरेक्शन को इधर को जाएगी, तो P के पोजीशन वेक्टर में से Q का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे।
यही बात यहाँ पे लिखी गई है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है मेरे पास P1 एंड P2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। P1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, P2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ठीक है। देन व्हाट इज OP1? OP1 is x1i plus y1j plus z1 की। व्हाट इज OP2? x2i plus y2j plus z2 की। देन OP2 वेक्टर P1 P2, आई वांट टू नो वेक्टर P1 P2, तो क्या करेंगे, OP2 में से OP1 माइनस कर देंगे, OP2 में से OP1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। तो दिस इज द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से जाने वाले वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है एक और है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जैसे हमने वहां पे 10th क्लास में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है। देखो O इज फिक्स पॉइंट एंड PQ इज ए, PQ को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ठीक है। तो एक पॉइंट है R, PQ के ऊपर एक पॉइंट है R जो PQ लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर से m इधर को n, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट R। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है हमारा, R है। R के मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, ठीक। इधर को P से लेके R, और PR और RQ का रेशियो क्या है, m/n, ठीक है। इंटरनल डिवीजन है ये, क्योंकि पॉइंट R कहाँ पर है, PQ के बीच में है, तो इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। देखो बच्चों, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर चाहिए। पॉइंट R इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट R इज डिवाइडिंग द लाइन PQ इन द रेशियो m/n। तो आई वांट टू नो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, तो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R स्मॉल r, वेक्टर R के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कहता है वेक्टर R इज इक्वल टू m की मल्टीप्लाई B में, n की मल्टीप्लाई वेक्टर A में, mb प्लस na अपॉन m प्लस n, ठीक है। इस फॉर्मूले से वेक्टर R के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे, m का क्रॉस B से, n का क्रॉस A से, मतलब m का मल्टीप्लाई B से करेंगे, n का मल्टीप्लाई A से करेंगे, अपॉन m प्लस n, जैसे वहां पे करते थे 10th में, बिल्कुल सेम। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है बच्चों। और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट R इज आउटसाइड द लाइन PQ, PQ के बाहर है पॉइंट R, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसके पोजीशन वेक्टर R है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर A, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B, तो P से R तक M और Q से R तक N, ये रेशो है PR और QN का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। MB वेक्टर R के पोजीशन वेक्टर क्या है, MB माइनस NA अपॉन M माइनस N, ठीक है। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म। अब मिड पॉइंट की बात करें, अगर ये R जो है मिड पॉइंट होता है इनका, तो क्या करते, R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2 कर देंगे। मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2, ठीक है। इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन वेक्टर R मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2, इसको याद रखें। तो आज की वीडियो में हमने ये थ्योरी पढ़ी आज, कल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है क्वेश्चन।